अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज महिउद्दीन। इस वीडियो में हम सिर्फ स्पेशल टेस्ट में जो भी पार्ट ए पार्ट बी है, सिर्फ क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। इसके आंसर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। सिर्फ पेपर का पैटर्न देखिए और किस तरीके के सवाल पूछे गए, क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में, वो देखेंगे। ये है स्पेशल टेस्ट जनवरी 2026 में जो ऑलरेडी हो चुका है। सब्जेक्ट है इंग्लिश और पार्ट ए पार्ट बी दोनों भी एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। ये है क्लास 10th के लिए। टाइम टोटल इस एग्जाम के लिए 3 आवर्स मिलने वाले हैं। सिर्फ पार्ट ए के लिए 2 आवर्स मिलने वाला है आपको। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है रीड द पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज। पैसेज पढ़ना है आपको, रीड द फॉलोइंग पैसेज। पहला क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्या है? एक कंप्लीट पैसेज है, देख लीजिए इसको अच्छी तरीके से। पैसेज में क्या बोला? बायाजी हैड पैक्ड हिज एंटायर हाउस होल्ड गुड्स इन हिज बॉक्स। There was no longer any reason to hang around in Bombay. He had worked honestly for the past 35 years in the dockyard and had retired from service 2 months before. Not that he had held an important position, he had merely got an extension for 2 years. During that period, he had become a supervisor. Otherwise, his entire life had been spent lifting heavy loads. He had worked very hard whenever he could, day and night. Bayaji had crossed 60 but was in sound healthy. He had a sturdy frame right from birth, and hard work had given a well formed. तो ये है स्पेशल टेस्ट जनवरी 2026, थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश, क्लास 10th के लिए पेपर था, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में आने वाला है रीड द फॉलोइंग पैसेज। तो ये पूरा पैसेज आप एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए। मैं यहाँ तक ऑलरेडी पढ़ चुका था, ठीक है। He had worked very hard whenever he could, day and night. Bayaji had crossed 60 but was in sound health. He had a sturdy frame right from birth, and hard work had given a well-formed shape to his strong body. He paid 50 paisa to the coolie, put the box in which he had thrown pots and pans and sundry other things on his own head and began to walk in the direction of his house. तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 to 4 पैसेज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट उस पैसेज के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 to 4 sentences. Question number 1, what made Bayaji decide to leave Bombay? Question number 2, how many years did Bayaji work in the dockyard? What position did he hold towards the end of his service? Bayaji had a steady frame and sound health even at 60. What does this tell us about Bayaji? Question number 4, Bayaji worked hard in his service. How do you think hard work impacts one's life? ये क्वेश्चंस होने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 to 8, क्वेश्चन नंबर 5 to 8 में क्या पूछा जा रहा, देखो आप। रीड द फॉलोइंग पैसेज। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में भी पैसेज आया, क्वेश्चन नंबर 5 to 8 में भी पैसेज आया। इस पैसेज में क्या है, देखो। फॉलिंग फॉर हर ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस as also the dowry which her father offered, a young man tied the 3 scared knots around her neck, made her the housewife to a household, and said to her, "Look, Amudu, this is your home." Then the housewife immediately pulled the end of her sari and tucked it in at the waist and swept the entire house and decorated the floor with Muggulu designs. Okay, then the young man promptly praised her work. You are dexterous at sweeping the floor, even more dexterous in drawing the Muggulu. Shabash, keep it up. Shabash, keep it up.
He said it in English, giving her a pat on the shoulder in appreciation. Over. Joy, the housewife, began living with swapping as the chief mission in her life. She scrubbed the house spotlessly clean at all times and beautifully decorated it with multicolored designs. That's how her life went on, with a sumptuous and ceaseless supply of swapping cloths and mugu baskets. तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 to 8 में पैसेज। अब जब पैसेज आया तो उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आएंगे ना, तो ये है क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखेंगे। पहले इसका जो हेडिंग है, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 to 4 सेंटेंस में लिखना है आपको, राइट, 3 to 4 सेंटेंसेस में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट प्रेज डिड द यंग मैन गिव द हाउसवाइफ एंड हाउ डिड ही शो हिज एप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 6, what does the housewife's immediate cleaning of the house tell us about her attitude towards her new home? Question number 7, have you ever tried your best to impress someone or make them happy? What did you do and how did you feel? Question number 8, pick 3 true statements according to the passage. A, the young man married the woman because of her good qualities. Question number B, after the marriage, the young man told her to look after the household. Question number C, the housewife refused to do any work in the new house and rested the whole day. Question number D, the housewife swept the floor spotlessly. Question number E, the housewife decorated the house only after someone instructed to do so. तो ये क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 6-7 तक तो क्वेश्चन आंसर्स है। 8 वाला क्या है, इसमें से जो सही स्टेटमेंट्स दिखे आपको पैसेज के अंदर मेंशन किए गए, उन्हीं पॉइंट्स को आपको 3 स्टेटमेंट्स को जो सही हैं उनको लिख लेना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 to 12 क्या दिया, स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन। यहाँ पे एक टेबल दे दिया, टेबल के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। टेबल कैसे पूछ रहा, देखो किस बारे में टेबल, वीकली स्क्रीन टाइम ऑफ ए स्टूडेंट, एक्टिविटी, ऑनलाइन क्लासेस, एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, गेमिंग, आवर्स पर वीक 12 आवर्स, 8 आवर्स, 5 आवर्स, 5 आवर्स, परसेंटेज ऑफ स्क्रीन टाइम 40%, 26.7%, 16.7%, 16.7%। अब इसी टेबल के ऊपर बेस करके क्वेश्चंस पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 9, विच एक्टिविटी हैज द हाईएस्ट स्क्रीन टाइम एंड व्हाट परसेंटेज डज इट रिप्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 10, how many hours does the student spends on online classes and entertainment together? Question number 11, if the student reduces entertainment time for 2 hours, how many hours of the entertainment will remain? Question number 12, what quality activities can a student do apart from spending time on screen? Mention any 2. तो इस तरीके से एक टेबल दे सकता, इस जगह पे टेबल आ सकता, या डायग्राम आ सकता, या तो पाई चार्ट आ सकता, ठीक है। उसको देखते हुए उसी के ऊपर थोड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे नीचे, उनको आपको लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, रीड द पैसेज गिवन बिलो फोकसिंग ऑन द पार्ट्स that are underlined. Answer any 4 of the questions as directed and write them in the answer booklet. इसके लिए आपको 4 2 8 मार्क्स मिलेंगे। क्या दिया यहाँ पे, फर्स्ट बिट है, मोहन was the most cheerful boy in his class. Early in the morning he went to the school garden because he wanted to water the plants. The garden was fresh and quiet. He began watering the roses. He felt happy. His teacher told him that he was taking good care of the plants. The teacher asked the helpers to clean the dry leaves near the bench. नाउ जो पैसेज अपन पढ़े ऊपर, उसी के ऊपर बेस करके क्वेश्चन थोड़े से है। क्या करना है, उस सेंटेंस को बोल रहा कि रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ वेरी फ्यू। जो भी बिट नंबर 1 है उसके बिगिनिंग में क्या लगा के लिखना है, वेरी फ्यू से लिखना स्टार्ट करो। क्वेश्चन बिट नंबर देखो 2 है, रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ एज
तो सेंटेंस के जो बिट नंबर 2 है वो सेंटेंस के यहाँ पे जो है ना बिट नंबर 2 इसके स्टार्टिंग से एज लगा के लिखना है। उसी तरह रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा के लिखना है। रीराइट द सेंटेंस, उसके बाद है रीराइट द सेंटेंस यूजिंग व्हेन, उसके बाद है रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विद हिज टीचर सेड, उसके बाद रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विद द हेल्पर्स। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 को आपको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द लेसन माई चाइल्डहुड राइट ए narrative describing the incident in which Siva Subramania Iyer invites young Kalam to his home for a meal. Now narrate how his conservative wife objects. The teacher calmly serves the boy himself. He encourages the boy by saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. Both decide to be part of positive social change. Now these are the ये क्या थे पॉइंट्स थे जिनको आपको इंक्लूड करना था डिस्क्राइबिंग डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे एक दो चॉइस आएंगे आपको 14th क्वेश्चन में, दो चॉइसेस रहते हैं। और में क्या दिया, राइट ए डिटेल एसे, तो मतलब यहाँ पे एसे लिखना है, डिटेल एसे ऑन द टॉपिक द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इन यूर एसे इंक्लूड द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ आवर एनवायरनमेंट, the major causes of pollution and environmental degradation, how deforestation, plastic waste and climate change affect human life and other living beings, the role of students, schools, families and the government is protecting nature, practical steps we take the conserve water, reduce waste and promote sustainability. So you अपने को क्या करना है, ऐसे के अंदर इन सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करके लिखना है। अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इन द लेसन Jamaican fragment, as the narrator walks to the tram car loans, he witnesses an incident which disturbs him. He sees two little boys playing in the garden. He observes the younger white boy dominating the older black one. Now imagine you are the narrator who witnessed the scene that disturbed and saddened you. Write a diary entry expressing your thoughts and feelings in this context. तो ये है डायरी एंट्री। डायरी एंट्री क्वेश्चन नंबर 16 में your school is conducting an awareness program on road safety which focuses on safe driving practices, following traffic rules, wearing helmets and seat belts and preventing road accidents. As the cultural secretary, draft a formal invitation inviting the chief guest and the students to attend the program. कितने मार्क्स, 5 मार्क्स के लिए, जिसके अंदर ये क्या है, इनविटेशन है। इस इनविटेशन के अंदर यहाँ पे लिखे हुआ इनविटेशन बोल के, इसके अंदर आपको डेट, टाइम और वेन्यू, लोकेशन कहाँ पर है वो सब मेंशन करना है। तो ये था हमारा पेपर इंग्लिश का कंप्लीट हुआ पार्ट ए, और इसके अंदर हम पार्ट एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ। अब पार्ट बी देखेंगे अपन। तो ऑडियंस ये है स्पेशल टेस्ट जनवरी 2026 थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश का पार्ट बी। पार्ट ए एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, और क्लास 10th का है ये भी याद रहे आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 to 21, क्वेश्चन नंबर 17 to 21, क्वेश्चन नंबर 17 to 21 में क्या है, रीड द फॉलोइंग पोएम। पोएम पढ़ना है आपको, देखो पोएम कितनी बड़ी है, ठीक है, ये पूरी पोएम पढ़ना है आपको। उसके बाद इसी पोएम के ऊपर बेस करके क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 एमसीक्यूज के फॉर्म, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है पूरे इस तरीके से आने वाले। क्वेश्चन नंबर 20, 21 ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस बिट का। ओके, पोएम पूछा, पोएम के ऊपर एमसीक्यूज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 to 26 में एक पैसेज देता जिसके अंदर रीराइट करो बोलते हैं अपने को, जिसके अंदर अपने को एरर्स दिखाई देते। तो एरर्स जो भी है पहचान के आइडेंटिफाई करके आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे आंसर दिख रहा ना आपको, इस जगह पे इसमें से जो भी क्वेश्चन नंबर 22 में जो भी सेंटेंस में जो भी रॉन्ग है
उसको सही करके इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 23 में जो भी आपको गलत दिख रहा उस सेंटेंस को जहाँ पे कुछ ऐड करना है या निकालना है या जो भी चेंजेस करना है उसको मॉडिफाई करके क्वेश्चन नंबर 23, 24 इस तरीके से 26 से लिखना है। इसके नीचे और एक है क्वेश्चन नंबर 27 to 31। कंप्लीट द पैसेज चूजिंग द राइट वर्ड फ्रॉम दोज गिवन बिलो, ईच ब्लैंक इज नंबर्ड। अब देखो यहाँ पे पैसेज पूरा लिखे हुआ है, इस पैसेज में बीच में ऐसा ब्लैंक्स छुटे हुए हैं। अब इस ब्लैंक्स के अंदर आपको आंसर लिखना है और ऐसा उसके अंदर ऑप्शंस है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या ए आना या बी या सी या डी। देखो आप ये पैसेज है, क्वेश्चन नंबर 27 में इस जगह पे क्या ए का आंसर आता है या बी आता है या सी आता है, इसमें से देख के लिखना है आपको। 28 में कौन सा जमता है, उस जगह पे ए बी सी डी इस तरीके से हो गया, इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 32 to 36 में रीड द फॉलोइंग पैसेज विथ फोकस ऑन द अंडरलाइन पार्ट्स, आंसर देम एज डायरेक्टेड इन द स्पेसेस गिवन। अब यहाँ पे ये सारे के सारे ये जो पैराग्राफ दिया, पैराग्राफ के ऊपर बेस करके यहाँ पे नीचे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या करना है, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विथ इट्स करेक्ट स्पेलिंग करते। जो भी वर्ड लिखे हुआ है अंडरलाइन करे हुआ है उसको करेक्ट स्पेलिंग लिखो बोल रहा। क्वेश्चन नंबर 33 में रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द राइट फॉर्म लिखो बोल रहा। क्वेश्चन नंबर 34 में राइट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, जो भी वर्ड अंडरलाइन करे हुआ है उसका मीनिंग लिखो बोल रहा। क्वेश्चन नंबर 35 में राइट द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 36 में रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द सिमिलर साउंडिंग वर्ड। ठीक है, तो ये था पार्ट बी। पार्ट ए पार्ट बी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इंग्लिश का मैं। तो क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। फिर इसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट्स के पेपर्स भी आपको अवेलेबल करवाएंगे। आप इन पेपर्स को एग्जाम्स के टाइम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स लेके आइए। तो मेरा बोलना था कि आप जितना पढ़ेंगे उतने अच्छे मार्क्स लेके आएंगे और जितनी प्रैक्टिस कम होगी उतना ही एग्जाम को लेकर डर लगेगा। तो कोशिश करिए अपने आप को इम्प्रूव करने की, पेपर के पैटर्न को समझने की, और जितना ज़्यादा पेपर के पैटर्न को समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।